Good afternoon. Very good evening to all. Today we have eminent cyber security expert and Mr. Mohit Yadav with us. He is owning the Akra Cyber Security Services, and he has 15 years of experience. And Mohit, here today by our side we have our state NIC head, Dr. Rajesh Kumar Misra, our training head and in charge and senior director IT, Sri Rajiv Ranjan sir, and our senior अरे colleagues, सर आपकी आवाज कम आ रही है. senior director and directors IT and आवाज नहीं आ रही है. आवाज कम आ रही है. hello, Mohit, are you getting my audio? Yes, yes. I'm getting you, audio, sir. Am I audible to you, everyone? Huh? Yes, yes. Okay, so here we have connected all the districts. Our officers sitting over at districts, they have also joined this conference through VC. Okay, so we heartily welcome you on behalf of our NIC family, NIC Bihar family, and definitely I'm sure it will be beneficial after this lecture. So now I will request our SIO sir to, before starting this session, he's give his thought regarding this conference. Then we will go ahead. Over to sir. Thank you, Vikas. Welcome, Mr. Mohit, on behalf of NIC Bihar. As you are aware about NIC, we are advisors, we are consultants, we are executors for all ICT projects for governments. So as NIC Bihar, we are responsible for all those ICT projects for NIC Bihar. These services and projects, these are executed for citizen services as well as for G2G and other services. So in a way you can say that NIC Bihar caters to around 13 crore of Bihar citizens. Then we have got 44 departments, we have got 38 districts. So this is the governance structure of NIC Bihar. With whatever model we execute the project, but cyber security is anyway remains the key. So whether it is on data center front, or we have got our end users, or we have got our developers. So all three type of users, these are part of NIC Bihar. As far as infrastructure is concerned, we have got we are onboarded on Meghraj, that is Government of India Cloud. We have a mini data center in NIC Bihar, and then we have got the state data center. So all those applications, these are spread over these. For our audiences from NIC Bihar, we have with us today with Mr. Mohit Yadav. He has over a decade of experience into the development and cyber security. He has been mentoring, guiding, carrying out knowledge sharing with various institutes and the industry. So we will let us benefit ourselves during this Swachhata Pakhwada of Government of India being executed during 1st to 15th February. Format, what I will suggest is that because the total time kitna hai aapka? Sir, 1 hour schedule. 1 hour. So what I will suggest is if session from Mr. Mohit could be let us say 30 to 40 minutes, followed by question and answers from the participants. And I request participants to be be open and be participative so that we can take the most benefit about from the speaker. Thank you. Sharing है उनके पास. Mr. Mohit, you can share your PPT or. Okay. Welcome everyone in this session. This is Mohit Yadav, and आज हम सीखेंगे कि what is the cleanliness we can actually add into cyber security. जो हमारे computers हैं, phones हैं, और जो हम laptops, whatever laptops we are using, how we can secure them, how we can protect them, how cleaner, how
how hygiene is our everyday cyber ethics are, मतलब हम हर जो इंटरनेट यूज करते हैं या हर रोज जो काम हम अपने फोन पर यूज करते हैं वो कितना क्लीन है और उससे एक्चुअली में क्या हमको एडवांटेज होता है और क्या कहाँ कहाँ पे हम लूप होल छोड़ देते हैं जिसकी वजह से साइबर क्रिमिनल्स हमारे डेटा को हैक कर लेते हैं। और इसी के बारे में आज का सेशन होने वाला है। एंड थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी, थैंक यू एवरीवन। एंड I see like around 40 people have already joined, and we would like to welcome everyone in this session. So शुरुआत हम करते हैं। मैं अपना स्क्रीन शेयर कर देता हूं सबके साथ। ओके Is my screen visible to everyone? Is my screen visible to Yes. everyone? सबको मेरी स्क्रीन visible है? Yes, it's visible. ठीक है, लेट अस स्टार्ट द सेशन। और आज का जो सेशन है वो है साइबर हाइजीन के ऊपर, कि साइबर हाइजीन एक्चुअली में होता क्या है और हमें अगर साइबर हाइजीन पर थोड़ा सा काम करना है, लाइक हाउ क्लीनर आवर फोन्स आर, और कैसे हम साइबर अटैक्स और साइबर क्राइम से बच सकते हैं। अल्टीमेटली देयर आर टू गोल्स ऑफ दिस सेशन। पहला, मैं आपको ये समझा सकूं कि आपके मोबाइल में जो डेटा होता है वो कितना इंपॉर्टेंट है, और हम जो रेगुलर इंटरनेट यूज करते हैं, हम जो रेगुलर अपना डे टू डे लाइफ में फोन्स को, लैपटॉप्स को या मोबाइल्स को यूज करते हैं, उससे एक्चुअली में आपके साथ क्या क्या हो सकता है। कोशिश करूंगा थोड़ा इलाबोरेट करके समझाने की। वैसे तो आई होप ज्यादातर लोगों को साइबर के बारे में थोड़ा बहुत आइडिया होगा, बट आई विल ट्राई कि मैं अपना इनपुट उसमें दे सकूं। सो दिस इज माय प्रोफाइल, व्हाट आई डू। मैं सेशंस लेता हूं साइबर सिक्योरिटी के, मैं साइबर सिक्योरिटी सर्विसेज देता हूं। वी हैव ऑफिस इन सिंगापुर, वी हैव ऑफिसेस इन न्यू दिल्ली, मल्टीपल लोकेशंस में हमारे ऑफिसेज है, जहां हम लोगों को बताते हैं कि कैसे साइबर क्राइम से बेसिकली बचा जा सकता है, कैसे हम ट्रेन पीपल ऑन इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी। सर्विसेज देते हैं जिसमें वेबसाइट्स को कैसे सिक्योर करते हैं, फोन्स को कैसे सिक्योर करते हैं, ये सारी सर्विसेज इज द पार्ट ऑफ आर फोर्टे, हम जो करते हैं एक्चुअली में। एंड आई एम अ पार्ट ऑफ क्रॉस सिक्योरिटी। सो लेट अस स्टार्ट। साइबर हाइजीन और साइबर क्लीनलीनेस के ऊपर है सेशन। तो सबसे पहला आता है कि साइबर वर्ल्ड होता क्या है। साइबर वर्ल्ड अभी तक हमको लगता है कि सिर्फ मोबाइल और चीजों के साथ कनेक्टेड होता है, लेकिन साइबर वर्ल्ड जो होता है वो आपका हर डेटा, उसको साइबर के साथ कनेक्ट किया जा सकता है। मतलब जैसे अगर आप आज मोबाइल के अंदर स्मार्ट वॉच पहनते हो, दैट इज ऑल्सो साइबर, रिलेटेड टू साइबर। उसमें जो डेटा होता है वो भी साइबर के अंदर ही आता है, साइबर वर्ल्ड के अंदर आता है। जो हम जितने भी मोबाइल फोन यूज कर रहे हैं या स्मार्ट, आजकल जो फ्रिज आते हैं वो फ्रिज भी स्मार्ट है। सो आप कभी फ्रिज लेने जाएंगे तो आप देखना कि आप विल फाइंड आउट देयर आर लॉट ऑफ अप्लायंसेस जो आजकल स्मार्ट अप्लायंसेस आ गई हैं। स्मार्ट अप्लायंसेस मतलब आपने फ्रिज के ऊपर टेम्परेचर सेट कर दिया और एप्लीकेशंस डाल सकते हो, उस पर यूट्यूब चालू कर सकते हो, आप अपनी रेसिपी देख सकते हो। तो मैं ये चीजें बात कर रहा हूँ, क्यों फ्रिज हो गया, कैमरा हो गया, स्मार्ट वॉचेज हो गए, तो हमारे चारों तरफ क्या है, इतने सारे डिवाइसेस हैं। एवरी डिवाइस के ऊपर क्या है, हमारा बहुत सारा डेटा है। सो आपने कभी एक चीज देखी है कि कभी sorry to interrupt you. Actually, your PPT is stuck. Samir, can you guide what he has to do? Mohit, I think your PPT is at the back. I am seeing the screenshot, something like that, in the front. Okay. Can you see my screen right now? Request personal content removal from Google search. We are able to see this page. Okay. Let me again share the screen.
Please close all the windows and share it away. Now I think it's visible. Yes, yes. Okay. Yes, now. तो हाँ, सो सेशन साइबर हाइजीन के ऊपर जैसा कि मैं पहले भी बता चुका हूँ. सो अब लेट्स स्टार्ट द सेशन. साइबर वर्ल्ड के बारे में बता रहा था. तो ये सारे जितने भी चीजें आप देख पा रहे हो, चाहे इसमें वर्चुअल रियलिटी है, आप चाहे आप अपनी कंपनी में आके अपना थंब इंप्रेशन लगाते हो, दैट इज ऑल्सो कनेक्टेड टू इंटरनेट. जो हम वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करते हैं, ये भी सारा डेटा से कनेक्टेड है. एवरीथिंग इज कनेक्टेड विद ईच एंड एवरीथिंग. जहां पे सबसे मेन चीज है कॉमन, जो है डेटा. आजू बाजू जितना भी हम सामान देखते हैं, या फिर हम कभी आपने ये चीज देखी है कि कभी आपने मोबाइल पे, आज आपका मोबाइल यहाँ पे हो एंड वी आर डिस्कसिंग अबाउट कि मुझे कैमरा लेना है, तो आपको कैमरे से रिलेटेड एड्स दिखनी स्टार्ट हो जाती हैं. तो जो आप बोलते हो ना, वो भी आपके मोबाइल फोन्स एज अ डेटा कंज्यूम कर रहे हैं. तो आपका मोबाइल है, अमेज़न पे देखोगे आपको कैमरे की ऐड दिखेगी, फेसबुक पे देखना स्टार्ट करोगे, यू विल फाइंड आउट लॉट ऑफ थिंग्स अराउंड यू. और सारा डेटा आपके मोबाइल्स पर होता है, आपके फोन पर होता है, आपके अलग अलग चीजों पे जो कैमरा होता है वो भी डेटा फेच करके. अब जितना भी साइबर से रिलेटेड काम होता है वो सब डेटा के ऊपर, क्योंकि इसी डेटा के पीछे होते हैं ये सब हैकर्स. आपके डेटा को लेना चाहते हैं. ऑनलाइन स्कैमर्स चाहते हैं कि वो किसी तरीके से आपके मोबाइल को कॉम्प्रोमाइज कर दें. आपके मोबाइल पे वायरसेस आते हैं, वो भी आपके डेटा को ही लेना चाहते हैं कि आपके डेटा को ऐसा ले लिया जाए कि उसके अंदर उसको आप भी खुद एक्सेस ना कर सको. गवर्नमेंट एजेंसीज भी आपके डेटा को लेना चाहती है. मतलब देखा होगा आपने, बहुत सारी चीजें आती हैं, पेगासस, और बहुत सारी कंट्रीज के बहुत सारे हैकर्स बैठते हैं. मैं अभी थोड़ा सा और आगे जाऊंगा तो मैं आपको उसके बारे में भी बताऊंगा. उसके बाद आती कुछ कंपनीज, जैसे कि मैंने बात की आपसे, गूगल, याहू, इंस्टाग्राम, फेसबुक आपसे सबसे ज्यादा डेटा लेती है. मतलब आपका सारा डेटा उन कंपनीज के पास होता है, और उन कंपनीज से आप A to Z चीजें जो होती हैं वो यहाँ तक आप किस चीज को लाइक करते हो, किस चीज को डिसलाइक करते हो, किस तरह के बैग्स आपको पसंद हैं, आप किस जगह पे खाना खाने गए, कौन सी डिश आपको पसंद है, ईच एंड एवरीथिंग ये कंपनीज आपके बारे में जानती हैं. और उस डेटा को आपके लिए ही यूज करती है. कई बार आपको दिखाया भी जाता है कि ये सब एड्स आपके लिए हैं, कई बार नहीं भी दिखाया जाता है. तो ये चीजें, ये सारे लोग आपके डेटा के पीछे हैं. और ये देखिए, अब वो जो डेटा है ना, वो सारा डेटा किसके लिए है? वो डेटा बेसिकली हमारा है, आप सब लोगों का है. और उस डेटा को हैक करने के लिए साइबर आर्मीज होती हैं. आपने आर्मी सुना होगा, लेकिन एक टर्म साइबर आर्मी, चाइना की साइबर आर्मी में अभी आपको दिखा रहा हूं इसमें फोटो में, जो आप देख पा रहे हो. वहां पे हैकर्स बैठे हैं, लोग बैठे हैं जिनका काम ही क्या है, दूसरी ऑर्गेनाइजेशंस के, दूसरे कंट्री के जो डेटा बेसिस होते हैं, या जो मोबाइल फोन्स होते हैं, जो की लोग, मतलब ऐसे लोग जो क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर्स के अंदर इन्वॉल्व होते हैं, जैसे आपका एयरलाइंस हो गया, एविएशंस हो गए, या फिर आपकी हेल्थ इंडस्ट्री हो गई. बीच में आपने देखा होगा कि एम्स का डेटाबेस के ऊपर एक अटैक हुआ था. तो एक्चुअली में ये सब चीजें होती है, वो सारा अटैक्स रिलेटेड टू योर डेटा है. और यही डेटा आज हम इस सेशन में समझेंगे कि हमें अपने मोबाइल पे कौन सा डेटा रखना चाहिए और कौन सा डेटा नहीं रखना चाहिए. बहुत सारे लोग, हम सब लोग ये सब सोचते हैं कि मोबाइल में जो डेटा होता है वो मेरे लिए इंपॉर्टेंट है बस. मतलब मैंने फोटो की और मेरी फोटो अगर किसी तक पहुंच जाएगी तो उसमें कुछ गलत नहीं है, या कोई इसका गलत यूज नहीं कर सकता. कई लोगों का ये व्यू होता है कि क्या ही मिलेगा मेरे फोन में. दिस इज अ नॉर्मल व्यू ऑफ अ नॉर्मल पर्सन. बट इस चीज को लेकर, इस डेटा को लेकर आजकल अलग अलग तरह के फ्रॉड होते हैं. मतलब एक सॉफ्टवेयर है जिसको डीप फेक बोला जाता है. आपका फोटो होगा,
आपका ही, मतलब बात मैं करूंगा, फोटो लेकिन आपका होगा, एंड ऑल द कम्युनिकेशन, आपको एक कॉल आएगा, वीडियो कॉल आएगा, और उस कॉल पर मैं बात कर रहा हूँ अपनी आवाज में, लेकिन फोटो आपकी लगी होगी। तो जिससे भी मैं मे बी आई कम ऑन टू अ वीडियो कॉल, उसको बोलूंगा कि भाई मेरे को अभी अर्जेंट में कुछ पैसा चाहिए, तो आप, कई बार लोग क्या करते हैं, विश्वास करके उनको पैसा पे कर देते हैं। क्यों? क्योंकि वीडियो कॉल, अभी रिसेंट में कल परसों की न्यूज मैंने देखी थी, एक कंपनी के सीएफओ, दैट वाज चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर जो होता है, उसकी तरफ से वीडियो कॉल गया, एंड वो किसने उठाया? जो उनका फाइनेंस में अकाउंट्स में पैसे ट्रांसफर करता है, उसने $30 मिलियन ट्रांसफर करवा लिए। कैसे? एक सीएफओ बनकर, एक हैकर कॉल किया सीएफओ बनकर एक फाइनेंस अकाउंट्स टीम को कि इस कंपनी को इतना पैसा ट्रांसफर करना है। ये कैसे होता है? ये होता है डीप फेक से। और ये डीप फेक टेक्नोलॉजी आप रोज न्यूज में सुन रहे हो कि डीप फेक से आवाज बदलकर व्हाट्सएप पर कॉल आया, और मेरे भांजे को की आवाज थी, उसने पैसे मांगे, एंड वो पैसा दे दिया। तो ये जो टेक्निक्स हैं, ये जो चीजें आजकल इनोवेशन हो रहा है, नई नई चीजें आ रही है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ रहा है, जिससे फोटो चेंज हो रही है, ऑडियो चेंज हो रही है, जो भी मैं बात कर रहा हूँ, ये ऑडियो की आवाज तक चेंज हो सकती है ड्यूरिंग द लाइव स्ट्रीम। मैं अभी आपसे बात कर रहा हूँ, हो सकता है कि मैं मोदी जी की आवाज में भी बात कर सकूं। तो ये कैसे होता है? ये होता है एआई की हेल्प से, और वॉइस चेंजिंग होती है। बहुत सारी वेबसाइट्स आ चुकी हैं, चैट जीपीटी जैसी बहुत हजारों वेबसाइट्स हैं जो इस तरह की चीजें कर रही हैं। और आज का मोटिव ही ये है कि क्या मैं आपको इस चीज के बारे में समझा पा रहा हूं कि ये जो डेटा है, इस डेटा से क्या क्या आपके साथ हो सकता है। ये लोग, सिर्फ यही लोग नहीं, एनीवन जिसके पास भी कंप्यूटर है, इंटरनेट है, वो सीख कर, कुछ टूल चलाकर, अगर आप अवेयर नहीं हो तो आपको हैक कर सकता है। बहुत मुश्किल, कोई हार्ड एंड फास्ट ऐसा नहीं है कि बहुत ही डिफिकल्ट कुछ चीज है। एनीवन, एक बीटेक का पर्सन भी जिसने कंप्यूटर साइंस पढ़ा है, जिसको थोड़ा बहुत कोडिंग का, लैंग्वेज का नॉलेज है, एक छोटा सा ऐप बना सकता है, और आपको भेज सकता है कि राम मंदिर की का प्रसाद मिल रहा है। इस ऐप को आप डाउनलोड कर कर, आपको सिर्फ क्या करना है, रजिस्ट्रेशन कराना है, आपको राम मंदिर की तरफ से प्रसाद आ जाएगा। और वो ऐप क्या करेगा? आपके मोबाइल में साइलेंटली आपके मोबाइल से एक एक ओटीपी, जितना भी ओटीपी आएगा, एसएमएस आएगा, वो किसी दूसरे नंबर पर भेज देगा। ये ऐप बनाना बहुत मुश्किल बात बिल्कुल भी नहीं है। और ये बीटेक में जो बच्चे ऐप डेवलपमेंट, एंड्रॉयड की प्रोग्राम बनाना सीखते हैं ना, वो हर रोज कर रहे हैं। सो ऐसे बहुत सारे क्राइम्स हो रहे हैं, और उन्हीं को मैं आज डिस्कस करने वाला हूं। जैसा कि मैंने आपको एक चीज बताई कि एक, आप अभी मैं आपको एक केस स्टडी बताता हूं। हमारा ऑफिस है साकेत में। हमको एक, मुझे को एक कॉल आया, और मुझे फोन करके बोला गया कि सर आपका बिजली का बिल जो है वो जमा नहीं हुआ है, तो आप उसको जमा करवा दो। अब मुझे, देखो मल्टीपल ऑफिस हैं, हो सकता है कि किसी का बिल सबमिटेड नहीं है, तो वो कई बार क्या होता है, उन्होंने मुझे फोन आता है, नॉर्मली सबके पास आता भी है। तो उन्होंने फोन किया, तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने बोला कि सर मैं आपको ना एपी के एक फाइल भेज रहा हूँ, आपको व्हाट्सएप पे भेज रहा हूँ, आप उसको डबल क्लिक कर लो एक बार, और अपने बिजली का ना डेटा डाल दो। यू नो व्हाट, वो फाइल एक एपी के फाइल थी, एक वायरस था, जिसका काम क्या था, क्योंकि हम ये रोज क्राइम देखते हैं, हम ये रोज साइबर क्राइम रोज हमारे सामने होते हैं, और तो हम ये देखते हैं कि ये जो फाइल आई, और फाइल को जैसे ही मैंने डबल क्लिक किया, हालांकि ये सब लोगों के लिए एक इंपॉर्टेंट मैसेज है कि अननोन फाइल को नहीं क्लिक करना। अब मैंने जो डबल क्लिक किया, मुझे पता था कि एक फाइल है, और उसने जो फाइल भेजी थी वो एक्चुअली में गलती से उसने मेरे एप्पल के मोबाइल पे एंड्रॉइड की फाइल भेज दी। तो आई नो कि वो एंड्रॉइड का जो फाइल है वो एप्पल के मोबाइल पे नहीं चलेगा। तो मैंने उसको ओपन किया, एंड आई वाज एबल टू फाइंड आउट कि वो सारे मैसेजेस किस नंबर पर भेज रही है। मतलब ऐसी ऐसी फाइल्स हैं, ऐसे ऐसे प्रोग्राम्स, आपको ऐसे कॉल आता है, और कॉल पर ऐसे आपको बहलाया फुसलाया जाता है, आपको विश्वास भी नहीं होगा कि
ऐसा भी इसी तरह से क्राइम हो सकता है। तो थोड़ा सा अवेयरनेस भी क्रिएट करेंगे, कैसे साइबर हाइजीन को आपको क्लीनिंग अपने आपकी जो मोबाइल के स्लाइड है वो संदर्भ। साइबर आर्मी वाली स्लाइड ही चल रही तब से। बिल्कुल बिल्कुल, हाँ मैं अब आ गया हूं कि यस अ, आप सब लोग अब बार ये देखिए कि कैसे हाउ टू बिकम 100% सिक्योर। बेसिकली अगर कोई 100% सिक्योर बनना चाहता है, ध्यान से समझना, अपना या तो पहली चीज कंप्यूटर मोबाइल फोन बाय मत करो। क्यों? क्योंकि 100% सिक्योरिटी कुछ होता ही नहीं है। डू नॉट बाय अ कंप्यूटर, डू नॉट बाय अ मोबाइल फोन अगर आप चाहते हो कि 100% सिक्योर। क्योंकि हो सकता है अभी आपको ऐसा लगे कि मेरा मोबाइल सिक्योर है, मेरा लैपटॉप में कोई वायरस नहीं है, लेकिन कोई वायरस या कोई सॉफ्टवेयर आपके डेटा को निकाल रहा है इस मोमेंट पे भी। सो 100% सिक्योरिटी कुछ नहीं होती। अब आपको करना क्या है, अब आप करोगे क्या, हाउ, व्हाट यू शुड डू राइट नाउ। सबसे पहले तो आप सब लोगों को अपने मोबाइल से भी, सबके पास मोबाइल होंगे, एंड्रॉइड के होंगे या एप्पल के होंगे। तकरीबन एक मोबाइल में 50 के आसपास मोबाइल एप्लीकेशंस लोग इंस्टॉल करके रखते हैं। फर्स्ट टास्क इज कि आप अपने मोबाइल में कौन कौन सी मोबाइल एप्लीकेशंस हैं इनको आप चेक कर लो। और मैं आपको एक चीज बता दूं, एक एंटीवायरस है, आप इसको डाल सकते हो, विच विल एक्चुअली स्कैन योर मोबाइल, मतलब आपका मोबाइल को रेगुलर तरीके से स्कैन करेगा। ओके, अब एक एंटीवायरस है, मैं आपको ये एक, आप अगर आपके साथ प्ले स्टोर है या ऐप स्टोर है, यू कैन जस्ट ओपन प्ले स्टोर और ऐप स्टोर अपने मोबाइल पे। मैं इसको थोड़ा सा इंटरेक्टिव रखना चाहूंगा, जिसमें इस सेशन में आप भी पार्ट ले सको। मतलब मैं चाहूंगा कि आप सब लोग भी इस सेशन का पार्ट बनो। आप अपना अपना मोबाइल ऑन करो, उसके अंदर आप देखिए कि कौन कौन सी एप्स डली हुई हैं। और आई एम डैम श्योर जब भी आप एक लैपटॉप खरीदने जाते हो तो उसके साथ में विंडोज भी डलवाते होगे, उसमें एंटीवायरस भी डलवाते हो। एम आई राइट? लेकिन जब आप एक यस मोबाइल खरीदते हो तो उसमें कोई एंटीवायरस नहीं होता, ना ही आप उसमें एंटीवायरस कभी डालते हो। उसमें गेम्स डलते हैं, उसमें आप जो भी आपको मन करता है आप वो प्रोग्राम डालते हो, लेकिन एंटीवायरस कभी नहीं डालते। सो फर्स्ट टास्क इज टू इंस्टॉल एन एंटीवायरस इनटू योर मोबाइल। अभी आप, हम सब एक एंटीवायरस को अपने मोबाइल में डालेंगे, प्ले स्टोर को ओपन करेंगे, वी ऑल विल ओपन अ प्ले स्टोर एंड यहां पे टाइप करेंगे अवस्थ, AVAST। आई होप एवरीवन इज डूइंग इट। छोटा सा एक एक्टिविटी है, सब लोग करेंगे। हम क्या कर रहे हैं, अपने मोबाइल में एक एंटीवायरस डाल रहे हैं जो उसका नाम है अवस्थ। अब इसका स्पेलिंग एडवांटेज, अगेन? AVAST, अवास्त। AVAST। बिल्कुल, ये मैं उसको ओपन भी कर देता हूं, अवास्त एंटीवायरस। ठीक है, ये मोबाइल में डालेंगे। क्यों? क्योंकि जब आप इस एंटीवायरस को डाल दोगे तो ये आपको साइलेंटली बताएगा। आप अगर आप मोबाइल पे स्क्रीन पर देख पा रहे हो तो अवस्थ का एक आपको प्ले स्टोर में अवस्थ का एक ऐसा प्रोग्राम दिखेगा आपको। आप सब लोगों को मिल गया? मिल गया आई है। होप, बिल्कुल। आप सब लोग इसको इंस्टॉल करेंगे। मैं ये क्यों इंस्टॉल करवा रहा हूं, ताकि अगर आपके मोबाइल में कोई ऐसा प्रोग्राम है जो आपके मोबाइल से साइलेंटली डेटा निकाल रहा है तो ये आपको अलार्म करेगा। ये आपको एकदम से बताएगा कि आपका मोबाइल
चाइना में एक सर्वर के साथ कनेक्टेड है और वहां डेटा भेज रहा है। ये नॉर्मली हम लोग करते नहीं है, ये सारी चीजें अवेलेबल है। ओनली थिंग इज कि हम क्यों नहीं करते, हमें लगता है कि हमारे मोबाइल में एक ऐप और ज्यादा एक्स्ट्रा हो जाएगा। जबकि अगर ये मोबाइल में ये ऐप डला है और कोई स्कैमर आपको कोई एपीके भेजता है, तो आपका मोबाइल उस एपीके को इंस्टॉल नहीं होने देगा। मतलब आपका मोबाइल उस वायरस को इंस्टॉल नहीं होने देगा आपके मोबाइल फोन के अंदर। वाई? बिकॉज एक एंटीवायरस आपके मोबाइल में पहले से डला हुआ है। दिस इज द इंपॉर्टेंस ऑफ योर एंटीवायरस इन योर मोबाइल। ये लीस्ट टॉक्ड, बहुत कम लोग इसके बारे में बात करते हैं। एंटीवायरस इन मोबाइल, आई डू नॉट नो, बट दिस इज वेरी क्रूशियल। आज के मूवमेंट पे बहुत क्रूशियल है, बिकॉज एंटीवायरस जो है ना, वायरसेस हर फॉर्मेट में आ रहे हैं आजकल। सो बी अवेयर कि ये एंटीवायरस, ये मोबाइल आप जरूर, ये जो एंटीवायरस मैंने आपको बताया है, ये आप अपने मोबाइल में डाल लें। आगे बढ़ते हैं। हम लोगों ने एक मिनट सर, हम लोगों ने एम कवच 2 डाला हुआ है, तो क्या हम लोग को दूसरा और डालना चाहिए? सर ओके, मैं आपको एक चीज बताता हूं कि ये जो एंटीवायरस होते हैं, ये वायरसेस काम कैसे करते हैं। वायरसेस काम करते हैं दो चीजों के बेसिस पे। एक होता है सिग्नेचर के बेसिस पे, जैसे आपके फोन में पहले से एक छोटा सा सिग्नेचर रखा होगा हर वायरस का कि ये एबीसी वायरस है। तो कल को एबीसी वायरस जब आपके मोबाइल फोन पे आता है तो वो देखता है कि क्या इसका सिग्नेचर मेरे पास है या नहीं है। अगर होगा तो अलार्म कर देगा। हर एंटीवायरस फुल प्रूफ नहीं होता, जैसे मैंने शुरुआत में ही बोला था, 100% सिक्योरिटी नहीं होती। हम अपनी सिक्योरिटी को लेवल बाय लेवल थोड़ा स्ट्रॉन्गर करते रहते हैं। चाहे आप जितना भी स्ट्रॉन्ग ऑफिस बना लो, फिर भी चोरियां होती हैं, फिर भी देयर आर क्राइम्स विच आर हैपनिंग। सो अगर हमने एम कवच डाला हुआ है वो भी ठीक है, अगर हम अवस्त को यूज करते हैं वो भी ठीक है। जिनके पास अवस्त यूज करते हैं अवस्त भी यूज कर सकते हैं, दैट इज पर्सनल चॉइस। आपका एंटीवायरस आप कौन सा यूज करना चाहो वो आप अपने लेवल पर देख सकते हैं। लेकिन एक एंटीवायरस आप सबके मोबाइल में जरूर होना चाहिए जो रेगुलरली आपके मोबाइल को स्कैन करता रहे। सेकंड टास्क जो आप सब लोगों के लिए है वो रहेगा कि हमको क्या करना है, अपने मोबाइल के सेटिंग में जाना है और सेटिंग में जाके अबाउट फोन में ना अपडेट का ऑप्शन होता है। यहां पे एक चीज मैंने बहुत सारी देखी है बहुत सारे लोगों के साथ कि हम ना अपना मोबाइल फोन अपडेट नहीं करते, वो एरर बोलता रहता है बार बार। आई डोंट नो कितने लोग उसको रेगुलरली अपडेट करते हैं, लेकिन अपडेट बटन पे नहीं क्लिक करते, उसको कैंसिल कर देते हैं। वो ऑलवेज इट इज आस्किंग फॉर अपडेट्स। ऑलवेज अपडेट योर एंटीवायरस, ऑलवेज अपडेट योर मोबाइल फोन ऑपरेटिंग सिस्टम। क्यों जरूरी है? हर मोबाइल फोन में कोई ना कोई कमी आती है। अभी बीच में सोनी के फोन में कमी आई थी, सटिन ने नोटिफिकेशन जारी किया था कि सोनी के फोन्स के अंदर बग्स है। सोनी के फोन्स में बग्स हैं। अब क्या होता है, लोग पीपल डू नॉट अपडेट देयर फोन्स, पीपल डू नॉट अपडेट देयर एप्लीकेशंस। तो बग्स और एप्लीकेशंस अगर आपने अपडेट नहीं किया सो आपके मोबाइल बन जाते हैं क्या, वनरेबल। कल को कोई भी आपका मोबाइल इजी तरीके से हैक कर सकता है अगर आपका फोन अपडेट नहीं है। तो सेटिंग में जाके आपको अपना फोन अपडेट पे लगाना है। इससे क्या होगा, आपका जब मोबाइल फोन अगर अपडेट होगा तो वायरसेस जो होते हैं वो अपडेटेड मोबाइल फोन्स के लिए ज्यादा नहीं बनते हैं। सो कम, मतलब ज्यादा वायरसेस आपके मोबाइल फोन पर अटैक नहीं कर पाएंगे। अटैक तो फिर भी होगा लेकिन कम होंगे।
सो अवेयरनेस में मैं आपको यही बताना चाहूंगा कि अपने मोबाइल फोन को हमेशा अपडेट रखना है और आपका जो एंटीवायरस होता है उसको हमेशा रनिंग मोड में रखना है। ठीक है, एक और चीज मैंने बताया था अभी, एपीके। एपीके ये सभी को नोट करने के लिए इंपॉर्टेंट है। आप सभी लोग इसको नोट कर लीजिए कि जो एंड्रॉयड के फोन होते हैं ना, इनको हैक करना आसान होता है। क्यों? क्योंकि ये ओपन सोर्स होते हैं। इनमें एपीके मतलब एंड्रॉयड प्रोग्रामिंग टूल किट, मतलब एक EXE समझ लो, या एक ऐसा फाइल, जैसे कोई भी फाइल ये आपके मोबाइल में इंस्टॉल हो जाएगी। कोई भी जो गेम इंस्टॉल करते हो वो ऐसा ही होता है, .apk। जैसे आपने पबजी चलाया या जो भी आपने रन किया या कैंडी क्रश रन किया, तो कैंडी क्रश .apk। आजकल लोग राम मंदिर के नाम से एपीके भेज रहे हैं, इलेक्ट्रिसिटी बिल के नाम से एपीके भेज रहे हैं, अलग अलग तरह से आपको भेजा जाता है। तो आपको क्या करना है, ये जो फाइल होती है कभी भी आपको इंस्टॉल नहीं करनी है अपने मोबाइल फोन में। बहुत क्राइम्स हो रहे हैं आजकल एपीके को लेकर, मतलब बना के आपको भेजा जाता है और इसके साथ में फिर आपको किसी ना किसी तरीके की कोई ना कोई कहानी बताई जाती है। लालच में नहीं पड़ा। ये जो एपीके फाइल होती है ये लालच से आती है। मतलब एक मैसेज आता है आपके मोबाइल पे, एक व्हाट्सएप पे मैसेज आता है, इस लिंक को क्लिक कर कर आपको क्या करना है, आपको 500 रुपए का अमेज़न का कूपन मिलेगा। अगर आपने उसको क्लिक किया तो आपके मोबाइल फोन पे ये एपीके फाइल इंस्टॉल हो जाती है। सो ध्यान रखना कि ये वाली जो फाइल होती है कभी भी आपको अपने मोबाइल पे नहीं इंस्टॉल करनी। तो कोई बोले कि केवाईसी के नाम पर कोई फाइल इंस्टॉल करनी है, डू नॉट इंस्टॉल दिस प्रोग्राम फाइल ऑन योर कंप्यूटर। अभी तक किसी को डाउट है? अभी तक जो चीजें मैंने आपको बताई, एनीवन, किसी को अगर कोई डाउट है तो पूछ सकता है। नहीं अभी मैं बट इसको बोल रहा हूँ तो पेमेंट करने को बोल रहा हूँ मुझसे। बिना पेमेंट के अवेलेबल ही नहीं है। आवाज इज आस्किंग कि आप पेमेंट कीजिए समथिंग। फ्री नहीं है। आप फ्री में, आप नीचे ऑप्शन आएगा फ्री भी आप इंस्टॉल कर सकते हैं। पेमेंट बेसिस पर है। ओके, सो बेसिकली इट्स पेड बेसिस, नॉट इट्स फ्री। क्यों मोहित? आवाज नहीं, ये ऐप फ्री है, ऐप फ्री है, लेकिन अगर जैसे मैंने खुद इंस्टॉल किया है, इसमें स्किप का ऑप्शन होगा। किसी को लेकिन उसको पैसा मांग रहा है। नहीं, कंटिन्यू कर सकते हैं विदाउट पेमेंट, इसको कंटिन्यू कर सकते हैं। ऊपर स्किप कर विदाउट पेमेंट के वो कंटिन्यू हो जाएगा। ओके आप विदाउट पेमेंट के भी इसको इंस्टॉल कर सकते हो। आपके कंप्यूटर, आपके फोन को ये स्कैनिंग करता रहेगा, मतलब ऐसा नहीं कि ये नहीं चलेगा, ये प्रॉपर तरीके से रन करेगा, आपके फोन को सिक्योर रखेगा। बाकी किसी को अगर ज्यादा अल्ट्रा सिक्योरिटी चाहिए तो वो पे कर सकता है, बाकी इतने से भी आपका काम चल जाएगा। ओके, लेट्स अब बात करते हैं कि एक चीज जो बहुत ज्यादा अभी चलती है वो ये आती है कि लोग ना लोन एप्लीकेशंस के ऊपर बहुत क्राइम होते हैं। सो नेवर इंस्टॉल लोन एप्लीकेशन। या जब भी हम एक एप्लीकेशन, आपने अभी अवस्थ एप्लीकेशन इंस्टॉल की, इंस्टॉल करते समय इसने कोई आपसे परमिशन मांगी? हाँ ध्यान, परमिशन मांग रहा है। हाँ, परमिशन मांगा है ये। ठीक है, तो ये जो परमिशन होता है ना, इसी परमिशन से सब कुछ होता है। जब भी हम कोई मोबाइल इंस्टॉल, मतलब कोई भी ऐप इंस्टॉल करते हैं अपने मोबाइल पे, तो वो आपसे परमिशन मांगता है कि अच्छा मैंने ओला या उबर इंस्टॉल किया, जोमेटो इंस्टॉल किया, तो वो बोलता है कि लोकेशन की परमिशन दो, या जोमेटो इंस्टॉल किया या इंस्टाग्राम इंस्टॉल किया तो बोलता है कि फोटो की परमिशन दो, अपने
फोन की परमिशन दो, वो सारी परमिशन आपसे मांग लेते हैं। यही क्या होता है, जब आप परमिशन पे एग्री कर देते हो, इसका मतलब आपने फोन को बोल दिया कि अपना सारा डेटा भेज दो। ठीक है, मतलब ये कंपनी तक ये सारा डेटा पहुंच जाता है। इन्हीं परमिशन का आपको क्या करना है, ध्यान रखना है कि मतलब अगर आपने एक कैंडी क्रश इंस्टॉल किया तो वो कैमरा की परमिशन नहीं मांगेगा, राइट। अगर आप उस पर गेम खेल रहे हो तो कैमरे की परमिशन और लोकेशन की परमिशन वो आपसे नहीं मांगेगा। अगर वो मांग रहा है, इसका मतलब क्या कि कुछ गड़बड़ है। तो हमारी इंडियन गवर्नमेंट क्या करती है, रेगुलर तरीके से कुछ ऐसी ऐप की ना लिस्ट निकालती है जो कि वनरेबल होते हैं। कैम स्कैनर यूज करते होंगे आप, जिससे आप पीडीएफ बना लेते हो, फोटो से पीडीएफ बन जाती हैं, और बहुत सारी चाइनीज एप्लीकेशंस हैं जो हम ये रोज यूज करते हैं। एक लिस्ट ऑफ एप्लीकेशन है वो ये देखिए, ये कुछ लोन एप्लीकेशंस हैं। नॉर्मली आजकल एक चीजें रनिंग है, एक स्कैम रनिंग है कि आप ये कुछ लोन के एप्लीकेशन, एक क्विक लोन मिल जाता है, इंस्टॉल किया और एकदम से आपको 10,000 रुपए 15,000 रुपए का लोन मिल जाता है विदाउट वेरिफिकेशन। मतलब अगर आप बैंक से लोन लेने जाते हो तो आपको बोला जाता है कि मेरे को आधार चाहिए, फिर घर की लोकेशन की वेरिफिकेशन होती है। लेकिन इन मोबाइल एप्लीकेशंस को इंस्टॉल करते ही 10-15 हजार रुपए सीधे आपके अकाउंट में आ जाते हैं। तो मतलब आप समझ सकते हो मतलब कि आ ये जाते वैलिडेशन। हैं। मोहित, इट इज प्रैक्टिकली ट्रू, मतलब इंस्टॉल करेंगे तो 10-15 हजार आ जाएंगे। एग्जैक्टली आपने इसको इंस्टॉल किया, इसमें अपना बैंक अकाउंट जोड़ा, और आपने इसमें जो वो आधार नंबर और पैन कार्ड मांगेगा, ओके करोगे, ओके तो वो 3,000 रुपीज का क्रेडिट आपको आपके अकाउंट में इजीली आ जाएंगे। मतलब विद इन 10 मिनट्स, 5 मिनट्स के अंदर अंदर आप वो पैसे अपने अकाउंट में क्रेडिट करा सकते हो। इतना क्विक होता है ये कि लोगों को लगता है कि एकदम मेरे को अभी 15,000 रुपए चाहिए, 20,000 रुपए चाहिए, तो वो एक कर लेते हैं। लेकिन होता यह है कि, अच्छा मैं आपको एक चीज बताता हूँ कि ये जब मोबाइल, इनमें से कोई भी एप्लीकेशन अगर आप फोन में इंस्टॉल करते हो ना, इंस्टॉल करते ही आपके मोबाइल के सारे कॉन्टैक्ट लिस्ट क्या करता है, वो अपने सर्वर पे अपलोड कर लेता है। A to Z जितने भी कॉन्टैक्ट लिस्ट होती हैं, जितने भी लोग होते हैं, आपके मोबाइल के अंदर जो फोटोग्राफ्स होती हैं, आपकी फोटोग्राफ्स, वो अपने सर्वर पर अपलोड कर लेता है। फिर क्या होता है, फिर बात आती है पेमेंट्स को लेकर। आपसे बहुत हाई इंटरेस्ट रेट चार्ज होता है, कई बार आपको पेमेंट्स के लिए धमकाया जाता है। और फिर मैंने अभी आपको एक वीडियो दिखाता हूँ, एक कॉर्नर पे आपको एक वीडियो नजर आ रहा होगा, ध्यान से सुनिएगा। एक ये स्टिंग ऑपरेशन है, बीबीसी ने किया था इसी तरह की लोन एप्लीकेशन के लोगों के ऊपर। उनका जो कॉल सेंटर रन करता था, उनका मैनेजर को चुपचाप एक स्टिंग ऑपरेशन में कैप्चर किया गया। नीचे वीडियो आप देख पाओगे। उन्होंने मैनेजर विशाल चौरसिया से पूछा कि लोन वसूली का असल में तरीका क्या है। किसी कस्टमर को लोन लेता है तो पूरी मोबाइल जो लिस्ट है ना, कंपनी के पास होती है। इसमें अम्मा, बाप, भाई, भाभी, भतीजी, बाबू, सोना, बीवी, सबके नंबर होते हैं। जब कस्टमर बिल्कुल ही इस्तेमाल कर लेता है ना, तब उसके रेफरेंस को बुलाया जाता है। अच्छा, उनकी मतलब पेरेंट्स के पास में या उसकी मदर के पास आया जाता है क्या? पैनिक। अच्छा, कस्टमर फिर शर्म से। तो अब देखो, इसने बोला कि पैनिक, मतलब कस्टमर का सारा, ये लोन एप्लीकेशन इंस्टॉल करते ही फोटोग्राफ भी उनके पास पहुंच गई, आपके सारे कॉन्टैक्ट भी उनके पास पहुंच गए। फिर क्या करते हैं, ये उनको धमकाते हैं, कॉल्स करते हैं, साथ में आपकी फोटोग्राफ को उठाते हैं आपके फोन में से, उसको मॉर्फ करते हैं। मॉर्फिंग मतलब बॉडी किसी और की, फोटो किसी और की, और वो फोटो, वो वीडियो किसको भेजा जाती है, आपके फ्रेंड लिस्ट को, आपके भाई को, ब्रदर को, आपके ऑफिस के एम्प्लॉइज को। यहां पे स्टार्ट होता है उनका जो
ये जो साइबर में जो खेल होते हैं ना, साइबर अटैक्स होते हैं, साइबर क्राइम होता है, एक्सटॉर्शन, इसको बोलते हैं सेक्सटॉर्शन। साइबर में किस तरह से आपके डेटा को आपको दिखाकर, फोटो आपको दिखाकर किस तरह से आपको बेइज्जती की जाती है ऑनलाइन। भी बोल दो, बस कस्टमर रिकॉर्ड ना करें। मोस्टली ऐसी कॉल्स को व्हाट्सएप पे लेते हैं, सब कॉल रिकॉर्ड नहीं होती। जब उसके बाप को गाली पड़ेगी तो किसी अभी देखना इसमें उन्होंने मैनेजर विशाल चौरसिया से पूछा कि कंपनी के पास इसमें अम्मा, बाप, भाई, दादी, भतीजी, बाबू, सोना, बीवी, सबके नंबर होते हैं। जब कस्टमर बिल्कुल ही इस्तेमाल कर लेता है ना, तब उनके रेफरेंस पे कॉल लगाया जाता है। अच्छा, उनके मतलब पेरेंट्स के पास में या उसकी मदर के पास आया जाता है क्या? पैनिक। अच्छा, कस्टमर फिर शर्म से कुछ भी बोल दो, बस कस्टमर रिकॉर्ड ना करें। मोस्टली ऐसी कॉल्स को व्हाट्सएप पे लेते हैं, सब कॉल रिकॉर्ड नहीं होती। जब उसके बाप को गाली पड़ेगी तो किसी की सिचुएशन ऐसी आएगी वो देगा। गाली गलौज काफी असरदार है, लेकिन चौरसिया ने हमें बताया कि बदनामी का डर ज्यादा कारगर रहता है। उसकी कॉन्टैक्ट लिस्ट में एक बंदा ऐसा मिलेगा जब आपको कि वो जिंदगी तबाह कर सकता है। हर इंसान के मोबाइल में ना एक नंबर ऐसा। ये वीडियो मैंने आपको इसलिए दिखाया कि इसमें स्टिंग ऑपरेशन में बेसिकली ये बताया गया कि जो कॉन्टैक्ट लिस्ट होती है, उस कॉन्टैक्ट लिस्ट को गलत तरीके से यूज किया जाता है और आपके फोटोज को मॉर्फ करके, मतलब मेरे पास तो इतनी फोटोज रोज आती हैं, लोग जो जिनके साथ ऐसा क्राइम हो जाता है वो मुझे भेजते, सर मेरे साथ ये हो गया, अब क्या करूं सर मैं। तो एक ही चीज मैं आप सब लोगों को बोलूंगा कि ये जो मोबाइल एप्लीकेशंस हम इंस्टॉल करते हैं और जो ऐप की परमिशंस देते हैं, खासकर ये लोन एप्लीकेशंस को लेकर, हो सकता है कि ये आपने नहीं किया, लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको छोटे छोटे अमाउंट की रिक्वायरमेंट होती है और वो कभी भी इस तरह की मोबाइल एप्लीकेशन इंस्टॉल करते हैं और इसका पार्ट बन जाते हैं। और ये सारी इस तरह की एप्लीकेशन हजारों हैं और ये सारी ज्यादातर एप्लीकेशन बनाई जाती हैं, रीनेम की जाती है। अब जैसे ये काफी सारी एप्लीकेशन ना फिर से प्ले स्टोर पर आ गई हैं या ऐप स्टोर पर आ गई, लेकिन नाम बदल कर। क्यों? क्योंकि हमारी गवर्नमेंट ने एप्लीकेशंस को ब्लॉक कर दिया है। तो आपको क्या करना है, पहली चीज इस तरह की एप्लीकेशंस को इंस्टॉल नहीं करना। बिकॉज ये आपको आपका डेटा अगर किसी तरह से उन तक पहुंच गया तो उस डेटा को गलत तरीके से यूज करते हैं। मतलब साइबर हाइजीन का एक सबसे मेन फंडा होता है कि आप अपने मोबाइल के ऊपर क्या डेटा रख रहे हो, क्या डेटा शेयर कर रहे हो। जो बच्चे होते हैं, जो 20-25 ईयर के जो यंग एज होती है, उसमें ये बहुत देखा जाता है, फोटोज शेयर की जाती है, वीडियो शेयर की जाती है और बाद में क्या होता है, बाद में जो एक पर्सन कोई उस फोटोज का, उस वीडियोज का गलत इस्तेमाल करता है और ये बहुत ज्यादा क्राइम में आता है। मतलब ये ऐसी चीज है कि आपने एक बार अगर किसी को फोटो भेज दी ना, तो वो फोटो और वीडियो समझ लीजिए कि वो इंटरनेट पर चली गई और वो डिलीट नहीं हो सकती। देयर इज नथिंग कॉल्ड, अगर आप ऑनलाइन सोशल मीडिया पे हो और अगर आपने एक फोटो पोस्ट कर दी, पहले के जमाने में क्या होता था कि शादी से पहले कभी अगर कुछ होता था तो वो उसको लेटर्स के थ्रू लिखा जाता था, लेकिन आजकल क्या हो गया, फोटोग्राफ्स के थ्रू, वीडियोस के थ्रू, ये सब बहुत ज्यादा तेजी से आ गया। पहले तो वो लेटर्स फटकर वो जीरो हो जाया करता था, लेकिन जब आईटी का फील्ड है, आईटी वर्ल्ड में जितना भी कंटेंट गया वो कभी भी रिमूव नहीं होता। चाहे आप अपना मोबाइल फॉर्मेट कर दो, तो बहुत सारे सॉफ्टवेयर ऐसे हैं जो उन मोबाइल्स के अंदर से भी डेटा निकाल लेते हैं। ये मैं कुछ एग्जांपल दिखाता हूं आपको। ये कुछ सॉफ्टवेयर ऐसे जो आपके मोबाइल्स में से भी डेटा निकाल लेते हैं। आपने चैट किसी को भेजी, वो चैट भी रिकवर हो जाती है। इमेजेस किसी को भेजी, उसने इमेजेस रिकवर कर ली। सो बी वेयर ऑफ शेयरिंग एनीथिंग। मतलब हम फोटो भी शेयर कर देते हैं, बच्चों की भी फोटो शेयर कर देते हैं, ऑनलाइन भी, फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर या अलग अलग सोशल मीडिया पे बच्चों की फोटो शेयर कर देते हैं।
एक मैंने ना वीडियो देखा था थोड़े समय पहले, आई डोंट नो कितने लोगों ने देखा। बेसिकली उसमें क्या था, डीप फेक का वीडियो था उसमें। ओके, मैं आप सब लोगों के लिए वो वीडियो चलाता हूं। बेसिकली उस वीडियो में क्या हुआ था, हुआ ये था कि जो हम फोटोज शेयर करते हैं, जो हम वीडियो शेयर करते हैं ऑनलाइन, छोटे बच्चे की जब हम फोटोज, बेसिकली ये बोला जाता है कि आपको ना अपने छोटे बच्चों की या जो सोशल मीडिया पे हम जो चीजें शेयर करते हैं उन फोटोज को लेकर आजकल के जो एआई वाले सॉफ्टवेयर हैं वो उस फोटो को मैच्योर बना सकते हैं। मैच्योर बना सकते हैं मतलब आज आपके बच्चे की फोटो आपने डाली, उसको एआई में डालकर, जैसे कुछ एप्स आती हैं जिनको बोलते हैं फेस ऐप, एक है फेस ऐप एंड्रॉयड के अंदर और ऐप के अंदर, फेस ऐप के नाम से एक ऐप आती है। वो क्या करती है, वो फोटोज के ऊपर ना चेंजेस कर सकती है। मतलब छोटे बच्चों को बड़ा, मतलब अभी आपका बच्चा 4 साल का है तो उसको धीरे धीरे करके, या 5 साल का अपने का फोटो आपने डाला तो धीरे धीरे करके वो मेच्योर्ड फेस दिखा सकती है। तो वो फोटोज को गलत तरीके से फेक आइडेंटिटी के तौर पे यूज किया जा सकता है। सो ये मुझे अभी वो वीडियो फ्रंट में नहीं दिख रही है, अदरवाइज आई वुड हैव प्लेड इट। बट हाँ, आप डीप फेक की बहुत सारी वीडियोस आपको देखने को मिलेंगी इंटरनेट पर, और देखा भी होगा आपने। बीच में एक वीडियो आई थी, मोदी जी का एक वीडियो था जिसमें वो गरबा खेल रहे हैं, वो बेसिकली डीप फेक वीडियो था। और ये बनाया कैसे जाता है, ये बहुत सारे टूल्स हैं, सॉफ्टवेयर हैं, सीखना मुश्किल नहीं है कि बहुत मुश्किल वाली चीज है कुछ डीप फेक सॉफ्टवेयर्स को रन करना, कोई भी आईटी का बच्चा कर सकता है। तो लेट अस मूव। और ये जो सॉफ्ट जिसकी बात कर रहे हैं, योर डेटा कैन बी रिकवर्ड। अच्छा, स्क्रीन पे शायद स्टॉप है क्या? हेलो मोहित, एक बार रिपीट कीजिए, मैंने क्वेश्चन क्या था? ये जो अभी हम जो स्क्रीन देख पा रहे हैं, इस स्क्रीन के ऊपर आप देख पा रहे हैं योर डेटा कैन बी रिकवर्ड। ये टूल मैं आपको दिखा रहा हूँ स्क्रीन पे। नहीं, अभी दिख रहा है मुझे आपका PPT दिख रहा है। साइबर हाइजीन एंड साइबर क्लीनिंग का प्रेजेंटेशन का होम स्क्रीन। आप उसमें ना स्क्रीन शेयर ऑप्शन होगा, जब शेयर करते हैं तो ऑप्शन आता है कि आपको स्क्रीन शेयर करना पीपीटी। आप एक बार दोबारा शेयर ऑप्शन में जाएंगे ना, इसको मिनिमाइज कीजिए, ऐप पे जाइए जिससे आप कनेक्ट हैं। बाहर संदीप जो और लोग होंगे ना बैठे होंगे, नीरज सर होंगे ना बगल में। समीर जरा गाइड कीजिएगा। हाँ, आप इसमें से देखिए, जो शेयर ऑप्शन आता है तो पूछता है आपको टैब शेयर करना है। हम अभी जो बात कर रहे हैं वो इस तरह के सॉफ्टवेयर और डिवाइसेस की कर रहे हैं। जब हम मोबाइल्स की भी जब हम बात करते हैं, जो मोबाइल्स को हम सही कराने लेकर जाते हैं, हमारे मोबाइल जब खराब हो जाते हैं और गफार मार्केट और ऐसी जगह पे हम इनको सही कराने के लिए देकर आते हैं, तो वो क्या करते हैं, उनके पास ऑप्शन होता है या तो ऐसे का ऐसा सही करके आपको देते। कई सिचुएशंस में ऐसा दिखा गया है कि उन मोबाइल्स को हम बेच भी देते हैं, OLX पे या अलग अलग जगह पे बेच देते हैं। बहुत सारे सॉफ्टवेयर्स होते हैं जो उन मोबाइल से डेटा रिकवर कर लेते हैं। डेटा रिकवर कर देते हैं मतलब जो आपकी डिलीटेड फोटोग्राफ्स होंगी वो सब रिकवर हो जाती है। और साइबर हाइजीन का एक अल्टीमेट गोल ये है कि ऐसी कोई भी फोटो आपके मोबाइल पर नहीं होनी चाहिए जो आप इंटरनेट पर नहीं देखना चाहते। जो फोटो आप इंटरनेट पर नहीं देखना चाहते, वो फोटो आपके मोबाइल पर बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए, चाहे वो आपकी है चाहे आपके परिवार की है।
क्योंकि ये डेटा शेयर, आपके मोबाइल का डेटा शेयर होना बहुत बड़ी बात नहीं है और हो रहा है, ये आप सब लोग भी जानते होंगे, बट हम इतना ज्यादा फोकस में नहीं रहते कि कौन हमारा कितना डेटा ले रहा है। आजकल हम जब ऑनलाइन कुछ रन कर रहे हैं, ऑनलाइन या किसी भी प्लेटफॉर्म पे हैं, तो आपके मोबाइल से बहुत डेटा कंज्यूम होता है। अगर मोबाइल आपका रखा भी है, फिर भी आपके मोबाइल से ब्रॉडकास्टिंग हो रहा है, कुछ ना कुछ डेटा प्रोसेस हो रहा है। क्यों? क्योंकि ये जो एप्लीकेशंस हैं, मोबाइल एप्लीकेशंस हैं, ये आपका सारा डेटा लेती हैं। ओके, आज एक और मैं एक और एक्सरसाइज, लेट्स स्टार्ट दिस एक्सरसाइज। और मैं चाहूंगा कि आप इस वेबसाइट को एक्सेस करेंगे सब के सब। इसका नाम है आई थिंक स्क्रीन आप सब लोगों को दिख रही है। ओके, इसका नाम है हैव आई बीन पॉन्ड। ये वेबसाइट आप अपने मोबाइल पे ओपन करके देखेंगे और अपना ईमेल आईडी यहाँ डालेंगे। ये सबके लिए एक एक्टिविटी है। और अगर रेड आता है, इसका मतलब है आपका ईमेल आईडी कहीं ना कहीं हैक हुआ है, आपका डेटा कहीं ना कहीं ब्रीच हुआ है। सब एक बार करके देखेंगे अपने मोबाइल से या अपने लैपटॉप से, इसको करके देखेंगे। जो भी ईमेल आईडी आपको अभी याद है उसको डालेंगे और चेक करेंगे कि क्या आपका ईमेल कहीं कभी हैक हुआ है या ब्रीच हुआ है, ऐसा तो नहीं है। रेड आया किसी का? ओके, मैं अपना डालता हूं यहाँ पे। देखिए, ओ नो, यहाँ पे रेड भी आया होगा बहुत लोगों का। अब ये दिखा रहा है कि आपका ईमेल आईडी का पासवर्ड इस जगह पे, इस वेबसाइट पे हैक हुआ था। डोमिनोज का एक डेटा ब्रीच हुआ था, उसमें आपका पासवर्ड लीक हो गया। और अगर मैंने अपना पासवर्ड नहीं बदला, हैथवे बीच में अभी उसका डेटाबेस ब्रीच हो गया। तो 2023 में दिसंबर में हैथवे कंपनी है, हैथवे का डेटाबेस ब्रीच हुआ था। और ये बोल रहा है कि 4.7 मिलियन यूनिक ईमेल एड्रेसेस, फिजिकल आईपी, पासवर्ड, ये सब कुछ क्या हो गया था, डार्क वेब पर अपलोड हो गया था। जोमेटो बीच में हैक हुआ था, तो जोमेटो का भी डेटाबेस यहाँ पे दिख रहा है। आई होप आप सब लोगों को पता चल गया होगा कि किस किस का रेड मार्क आ रहा है। रेड मार्क का मतलब है आप सब लोगों को इंस्टेंटली अपना पासवर्ड बदल लेना चाहिए अगर रेड मार्क आ रहा है। अगर ग्रीन मार्क है देन इट इज ओके। इसीलिए बोला जाता है कि आपको हमेशा अपने ईमेल आईडीज के पासवर्ड रेगुलर तरीके से चेंज करते रहने चाहिए। Am I clear to everyone? सबको आइडिया लग रहा है कि मैं किस चीज पर बात कर रहा हूं? We should always check, पहले
चीज है कि हमको अपने जो आप जो ये वेबसाइट देख रहे हो, इस वेबसाइट पर अपना ईमेल आईडी डालकर चेक कीजिए कि क्या उसका कहीं ब्रीच तो नहीं हुआ। अगर ब्रीच हुआ है तो अपने पासवर्ड्स को चेंज कीजिए। रेगुलरली अपने पासवर्ड्स को हमें क्या करना होता है, चेंज करना होता है। ओके, अब यहां पे कितने लोगों को मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन के बारे में पता है? ये आपको बहुत हेल्प करने वाला है, मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन। ध्यान से सब देखेंगे। मैं एक अकाउंट में मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन लगाने की कोशिश करूंगा। पहले से MFA मेरे इस पे लगा हुआ है। तो जो अभी मैं बात कर रहा हूं वो बात कर रहा हूं इस चीज की, ऑथेंटिकेटर बोलते हैं। ये गूगल का ऐप है, गूगल ऑथेंटिकेटर। दिस वन। आपको क्या करना है, अपने जीमेल में जाना है। पहले स्टेप्स एक बार चेक करेंगे सबके सब। चाहो तो आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, मोबाइल से आप फोटो भी खींच सकते हो, ताकि आपको थोड़ा सा इसका आइडिया हो जाए। मैनेज माय गूगल अकाउंट पे जाएंगे। यहां पे जाने के बाद सिक्योरिटी पे आप जाएंगे। सिक्योरिटी, और यहां पे आपको 2 स्टेप वेरिफिकेशन ऑन करना है। आई होप सबका ये ऑन होगा। दूसरी चीज, ऑथेंटिकेटर होता है एक चीज। बेसिकली क्या है कि अगर कल को मेरा पासवर्ड किसी को पता भी लग जाता है तो भी वो इसको रन नहीं कर पाएंगे, वो इसको देख नहीं पाएंगे। क्यों नहीं देख पाएंगे? बिकॉज मेरे मोबाइल के अंदर एक सॉफ्टवेयर है। वो सॉफ्टवेयर क्या करता है, हर 30 सेकंड पे एक कोड जनरेट करता है और वो कोड हर 30 सेकंड पे बदल जाता है। तो ये एप्लीकेशन अगर आपके मोबाइल में है तो आपका मोबाइल, आपके ईमेल आईडी को कोई हैक नहीं कर सकता, क्योंकि आपका ये कोड हर 30 सेकंड पे बदल जाएगा और किसी और के पास ये 30 सेकंड का कोड, जब तक आपके पास आपका मोबाइल है तब तक ये नहीं पहुंच पाएगा। ये कोड कैसा दिखता है, मैं मोबाइल को मैं वैसा। मोहित, ये जो आपने ऑथेंटिकेटर बोला है, बेसिकली जीमेल सारी गूगल आईडीज के लिए वर्क करेगा और भी सारे के लिए तुम अपना ये NIT का जो है सबके लिए काम करता है। कॉमर्शियल ये सबके लिए काम करता है। इसमें सारा इंस्टा, व्हाट्सएप सारा कुछ डाल सकते हैं, कुछ भी आया तो। ये देखिए, अच्छा, फेसबुक नजर आ रहा है, इंस्टाग्राम नजर आ रहा है, व्हाट्सएप नजर आ रहा है। आप सब कुछ देखोगे हर 30 सेकंड पे चेंज हो जाएंगे। टाइम बेस्ड वाला जितना DOTP है, तो हर 30 सेकंड पे देखिए आप, ये जो घूम रहा है आपको लेफ्ट हैंड साइड पे, ये ऑटोमेटिकली 30 सेकंड पे चेंज हो जाएगा और इस कोड के लॉगिन। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन मेरे तरफ से एक है, जैसे कि हम लोग अपना एंड्रॉइड फोन को गूगल अकाउंट से लॉगिन करते हैं, तो उस केस में क्या ऑथेंटिकेटर उसको भी हैंडल करेगा? नहीं, बेसिकली क्या करता है, ये ऑनलाइन अकाउंट्स की बात करेगा।
कि ऑनलाइन जितने भी आपके अकाउंट्स हैं उनको ऑथेंटिकेटर के थ्रू लिंक कर देगा, क्योंकि ये जो गूगल अकाउंट है उसी को यूज करके उसी से आप इंस्टॉल करोगे ऑथेंटिकेटर ऐप। उसी गूगल अकाउंट को यूज कर आप ऑथेंटिकेटर ऐप इंस्टॉल करोगे, उसके साथ ऑथेंटिकेटर ऐप कनेक्ट हो जाएगी। अब जैसे ही वो कनेक्ट होगी उसके बाद आप इसको किसी भी मोबाइल एप्लीकेशन, किसी भी सर्विस के साथ जोड़ सकते हो, चाहे आपका जीमेल है, चाहे आपका फेसबुक है, चाहे आपका कोई भी इंस्टाग्राम, लिंक्डइन, ये सारे गूगल ऑथेंटिकेटर पे एक ही जगह पे लिस्ट में आ जाएंगे, उसी जगह पे आपको सारी चीजें मिल जाएंगी। अच्छा, याहू के जो मेल है या हॉटमेल के मेल हैं तो उनको भी इस पे ले सकते हैं, हम लोग इंटीग्रेट कर सकते हैं। सब याहू, हॉटमेल, इन सब के ऊपर जाओगे तो आपको ऑथेंटिकेटर का ऑप्शन आएगा, तो वहां पे ऑथेंटिकेटर सेलेक्ट करना, वो एक आपको कोड देगा, वो कोड आप इसमें डाल देना बस। अच्छा, आप सब लोग ये करके भी देख सकते हो। ऑथेंटिकेटर जैसे ही आप इंस्टॉल करोगे यहाँ पे प्लस बटन आएगा, एक प्लस बटन पे ये 3 आपको ऑप्शन आपको नजर आएंगे, स्कैन द क्यूआर और एंटर योर कोड मैन्युअली। मतलब आप एक की डाल सकते हो, जो भी जिस भी सर्विस को आप यूज करोगे उसकी की आप यहाँ पे डाल दोगे, या फिर उस सर्विस पे आपको क्यूआर कोड दिखेगा, अपने मोबाइल से उसको स्कैन कर देना, और जैसे ही करोगे आपको यहाँ पे फिर दिखना स्टार्ट हो जाएंगे आपके ओटीपीस। तो इसके बिना किसी को पासवर्ड मिल भी गया तो भी आपका अकाउंट एक्सेस नहीं कर पाएगा। और ये बहुत ज्यादा देखा जाता है कि अटैकर्स आजकल ईमेल्स के थ्रू आपके मोबाइल्स को, लैपटॉप्स को हैक करते हैं। सो आपको अभी इतने लेवल पे किसी को डाउट आ रहा है? अब थोड़ा सा समय हो चुका है तो इसको थोड़ा सा कंक्लूजन की तरफ लेकर जाएंगे। मैं बात करता हूँ आवास्ट मोबाइल सिक्योरिटी जो है, उसमें क्या परमिशन देना है, ओके करना है कि नहीं करना है फाइल एक्सेस करने के लिए? नहीं, आप उसमें दे सकते हो क्योंकि वो एक एंटीवायरस है और उसका विदाउट परमिशन उसका काम नहीं चलेगा, क्योंकि वो आपके फोन को स्कैन कर हर चीज को चेक करेगा कि वो प्रोग्राम आपके फोन के लिए सही है या नहीं है। ठीक, ओके, ठीक है। आप उसमें अलाउ एक्सेस टू मैनेज ऑल फाइल्स, ताकि आपके फाइल्स को वो स्कैन कर सके, सारी फाइल्स को स्कैन करें, इसलिए आपको परमिशन देना पड़ेगा। ठीक है। अब अगर किसी के साथ ऐसा कुछ हो जाता है, फोटोज चली गई, अपलोड हो गई, किसी को भेज दी, ये वेबसाइट है, आप सब लोगों को इसको नोट करना है, cybercrime.gov.in। इसको आप नोट कर लीजिए। साथ में एक नंबर है 1930, ये साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर रिपोर्टिंग पोर्टल का नंबर है। ये मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के द्वारा बनाया गया नंबर है। इस पर जाकर आप कंप्लेन दर्ज करा सकते हो। कोई भी क्राइम आपके साथ होता है पैसे से रिलेटेड, आपको इस पर कंप्लेन कराना है। आपके साथ कोई आपका फोटो का गलत यूज कर रहा है, आपको इस पर कंप्लेन कराना है। cybercrime.gov.in 1930 पर कॉल कर आपको एकदम बताना अगर आपके सामने कोई पैसे का फ्रॉड हुआ है। जितना जल्दी आप बताओगे आपका पैसा रुक जाएगा। ये जेन्युइनली पैसा आपका रोक देता है। आपको एक मैसेज आ जाएगा कि 30,000 स्टॉप्ड, पेमेंट ऑन होल्ड। इसका मतलब है कि कहीं तो किसी अकाउंट में पैसा गया था, जिस अकाउंट में पैसा गया था वो वहीं पे रुक गया है, तो आपका पैसा इस पोर्टल की हेल्प से वापस आ सकता है। लेकिन शर्त सिर्फ एक है, सही इंफॉर्मेशन देनी है, सही कार्ड नंबर्स बताने हैं और पूरा डिटेल में बताना है। अगर लोग इस पे सही इंफॉर्मेशन नहीं डालेंगे, सिर्फ स्क्रीनशॉट डाल देंगे, इसमें सिर्फ नाम नजर आ रहा है, जिससे कि आगे उस पर एक्शन नहीं लिया जा सकता। एक आपका ये वेबसाइट है cybercrime.gov.in, एक है stopncii.org। ये बहुत काम की वेबसाइट है, खासकर लड़कियों के लिए, फीमेल्स के लिए। अगर कोई भी किसी भी वेबसाइट पर फोटो अपलोड हो चुकी है, अब कैसे उसको हटाना है, ये वेबसाइट को आपको क्लिक करना है। इस वेबसाइट पर आपको एक केस क्रिएट करना है और जहां जहां पे भी वो फोटो होगी पूरे इंटरनेट से वो हट जाएगी। तो यार हमारे लिए भी इम्पोर्टेंट हो सकता है ना।
बिल्कुल सबके लिए, मतलब अगर कोई ऐसी चीज जो सर्कुलेट हो रही है, ठीक है, मैं ऑन मासेस की बात करता मोहित, हूँ। एक लेटेस्ट मैं एग्जांपल दे रहा हूँ। 29 जनवरी को मेरे पास एक व्हाट्सएप कॉल आती है। उस व्हाट्सएप कॉल पर जो फोटो लगी होती है एक पुलिस ऑफिसर की लगी होती है। वो जनाब मुझसे कहते हैं कि आपका बेटा जो है क्रिमिनल केस में पकड़ लिया गया जरा यहाँ पर, और आप आगे की बात करें। तो हमने कहा ठीक है, हमने कहा जरा संभल के रहिएगा, क्योंकि ऐसे 2-4 पुलिस वालों रोज पकड़ता रहता है, तो आप जरूर इसको अंदर कर दीजिए, बहुत परेशान हम। तो बट उसका नंबर मेरे पास में है। आई मीन मैंने सोचा था, अभी अचानक से याद आया कि उसके बाद थोड़ा फ्री होकर मैं क्यों मीटिंग में बैठा हुआ था, फिर सोचा था फोन में बाद में इससे निपटते हैं, लेकिन उसने मुझे लगता है या तो मुझे ब्लॉक कर दिया जो भी, क्योंकि उसकी फोटो भी नहीं दिख रही। अभी मुझे अचानक से याद आया। तो फिर बोला नहीं, बोला अच्छा आपके भाई का कोई बेटा होगा। तो हमने कहा कोई नहीं, जितने भी हैं अगर उसने क्राइम किया तो अंदर कीजिए, और ऐसे रोज 2-4 वो निपटता है। तो उसका नंबर भी 92 सीरीज कहाँ की है, 92325? ये पाकिस्तान की सीरीज है। अच्छा, पाकिस्तान के। तो हमारा बेटा पाकिस्तान में है, मुझे उस दिन पता चला 29 जनवरी को एक बेटा वहां पहुंच गया है। नहीं, इसे 2 बातें और पता चलती हैं। जो एक कल परसों ना मेरे पास कल परसों मेरे पास एक कॉल आया। बता देते हैं, मतलब ऐसे भी कॉल आती हैं, बट मेरे को 29 जनवरी को भी आया। मैंने एक ना कल परसों मेरे पास एक कॉल आया था पुलिस ऑफिसर की तरफ से लखनऊ से, और मुझे बोला जा रहा था कि आपका एक पार्सल जा रहा है, और वो पार्सल जा रहा है दिल्ली से म्यांमार, ठीक है, और उस पार्सल में MDMA मिला है। तो आपको ना आपको बेसिकली लखनऊ पुलिस पे जाना पड़ेगा और वहां पे कंप्लेंट करनी पड़ेगी। और क्लियर बताया उसमें, मतलब मैंने रिकॉर्ड एक्चुअली किया था, यहाँ पे शायद प्ले नहीं हो पा रहा। नहीं तो नेम जॉन डेविड। हाँ जी, बेसिकली DHL से बनकर फोन करते हैं और बोलते हैं कि आपका MDMA एक पार्सल जा रहा था जिसमें कपड़े थे, और वो जा रहा है कहाँ, म्यांमार। और म्यांमार में बेसिकली एक एड्रेस बताया जाता है, फेक नंबर बताया जाता है, और फिर आपको किसी तरीके से बोला जाता है कि ठीक है आप अभी लखनऊ जा सकते हो क्या। मैंने बोला अभी तो मैं लखनऊ नहीं जा सकता। ठीक है, मैं लखनऊ पुलिस थाने में, हजरतगंज पुलिस थाने में आपका क्या कर रहा हूँ, कॉल फॉरवर्ड कर रहा हूँ। DHL से ही उन्होंने फॉरवर्ड कर दिया कॉल पुलिस थाने में। तो वहां जैसे ही उन्होंने कॉल किया, वहां पे एक पर्सन पुलिस की टोन में मुझसे बोलता है कि कहाँ जा रहा है, क्या जा रहा है, उसने तुम्हें पता है MDMA क्या होता है। तो मैंने थोड़ा सा ऐसा लगाया कि उसको मुझे नहीं पता कि क्या होता है और क्या ये चीज है। अल्टीमेटली उसने कहीं ना कहीं उसको लगा कि इतना इजी ये पैनिक नहीं हो रहा है तो कुछ तो गड़बड़ है, तो उसने फोन काट दिया। एंड तो उसके बाद इस तरह की चीजें बहुत ज्यादा चल रही है, मतलब जिन लोगों को इसके बारे में पता नहीं तो पैनिक कर जाते हैं। तो इस तरह की चीजों में आपको पैनिक नहीं करना। बस सर समस्तीपुर से सर बोलना चाहेंगे हर गुनाह को जो है बिल्कुल बहादुरी जो के आपने साथ बताया सामना है, करना है। एग्जैक्टली जो आपने बताया है, ये एग्जैक्टली मुझे फोन आया था। मैंने पूरी बात सुनी, पुलिस वाले ने मुझसे बात किया। मैंने कहा ये बताओ यार कि अगर आपके एयरपोर्ट पे हमारा कोई पार्सल है और अगर उसमें ड्रग्स जा रहा है म्यांमार, तो आप एयरपोर्ट से बोल रहे हैं, तो थाना हजरतगंज में कैसे हो गया? एक्चुअली मेरी पढ़ाई लिखाई लखनऊ में ही हुई है, तो मैं लखनऊ को जानता हूँ अच्छी तरह से। तो मैंने कहा ये केस आपके हजरतगंज में कैसे गया? एयरपोर्ट तो कहीं और है। तो अगर ये मामला होता तो वहां जाना चाहिए, पहली बात। दूसरी बात, अगर कोई पार्सल जा रहा है, अगर उसमें कोई ड्रग्स है, तो मैंने कुछ पेमेंट किया होगा, मैंने किसी को ऑर्डर दिया होगा। तो सिर्फ मेरे नंबर को जानने से और मेरा नाम आप बता रहे हैं आशुतोष नंदन सिंह, आप ये कैसे साबित कर सकते हैं कि वो मेरा ही है? बहस हुई, अंत में वो कुछ बोला, तो मुझे ऐसा महसूस हुआ कि जो सामने से पुलिस वाला बोल रहा है उसके मुंह में गुटखा या रजनीगंधा है। हमने कहा पहले तुम्हारे मुंह में जो रजनीगंधा है उसको फेंक लो, ठीक है, तब फिर तुम हमसे बात करना। उसका गाली गलौज करने लगा। हमने कहा तू फोन ने तो जान लो भी क्या करेंगे तुम्हारा। देखिए ये ऐसी चीजें बेसिकली
जो तरीके हैं ना, ये तरीके रोज एवरीथिंग न्यू इज कमिंग, हर रोज कुछ ना कुछ नया आ रहा है। कभी आवाज चेंज करके बोला जा रहा है कि मेरे आपके बच्चे को पुलिस ने पकड़ लिया है, जैसा भी बताया, ठीक है, या बच्चे की तरफ से ही फोन आता है। बिजली का बिल आजकल हो ना, बिजली के बिल में बहुत आता है कि अगर अभी नहीं दिया तो कल से बिजली बंद हो जाएगी, तो रात को लगेगा ये एसी चल रही है बंद हो जाएगी, चलो पेमेंट कर। ये भी दिल्ली में खूब बीच में पॉपुलर हुआ था, मैसेज आता था आप इलेक्ट्रिसिटी बिल पे कीजिए नहीं तो रात को कट जाएगी। अब लोग लगता है कि अगले दिन सुबह लाइट नहीं रहेगी, रात को बच्चे कैसे सोएंगे, तुरंत पे करो। मैं अपना एक केस बता रहा हूँ, मेरा जितना लोन अमाउंट है वो पूरे एग्जैक्टली बताता है कि आपका इतना लोन अमाउंट है और आपने अब तक दिया नहीं, आप मतलब हमको भेज दीजिए। मतलब यहाँ तक वो लोग मतलब रिकॉर्ड रखता है कि इतना लोन का एग्जैक्ट रुपया पैसा बताता है। ऐसा हुआ है, 1.25 लाख रुपया निकाल लिया गया है 1 सप्ताह पहले हमारे बहुत करीबी, और हमको भी ये फोन आ चुका है बिजली बिल वाला। सर ये पीपीटी हमने वो नहीं शेयर कर दिया जाता है। नहीं, अभी शेयर कर मेरे पास आरपी ठाकुर बोल रहे हैं आपका गैस का कनेक्शन जो है कट हो जाएगा, पेमेंट करो। तो हमने कहा कि कौन सा घर है। तो ये जो चीजें होती है ना, ये सब जो पेमेंट कराने का जो सिस्टम है, लास्ट में आता है कि आपको मोबाइल पे एक ऐप भेज रहे हैं, ठीक है, उससे करो। और वो ऐप जो होता है वही होता है वायरस, जिससे आपका सारा डेटा निकल जाता है। नहीं, बहुत चीजें होती है, जैसे बोलेगा एनी डेस्क इंस्टॉल कर दीजिए सर, एनी डेस्क इंस्टॉल करवा देगा आपके मोबाइल पे। ये भी एक तरीका है, ये भी एक तरीका है। 74,000 अभी निकाल लिया है मेरे एक नोन आदमी का, एनी डेस्क इंस्टॉल करा दिया। दूसरा एक तरीका है कि बोलेगा कि आपके नाम का एक कुरियर जा रहा था, उसमें कुछ ड्रग्स डिस्कवर हुआ है, उसको सिंगापुर भेजा जा रहा था आपका नाम यूज करके, आपका आधार नंबर यूज करके। हम DHL से बोल रहे हैं और उसके बाद आपका ट्रांसफर करेगा, वो मेरे साथ हुआ है, आपका कॉल ट्रांसफर करेगा कि फलाने थाना में आपका कॉल ट्रांसफर करते हैं, और वहां पैसा मांगेगा कि इतना पैसा दे दो, FIR रजिस्टर कर देते हैं। बिल्कुल, ये तो सबके साथ ही होता है, ये तो मतलब यहाँ पे काफी सारे लोगों के साथ हो चुका है, और ये मेरे पास भी कॉल आया है। मोहित, तो मुझे लगता है कि अब क्योंकि काफी समय हो गया तो लास्ट 10 मिनट्स अब कंक्लूजन की तरफ बढ़ते हैं, क्योंकि और भी फिर क्वेरीज भी हो सकते हैं। कुछ गुरु मंत्र बेसिकली अंत में जो है, अब आपने काफी डिटेल में बता दिया, अब वो मंत्र बताइए जो एक हो जो उसको पढ़ ले और काम वो वाला समराइज्ड हनुमान चालीसा या कोई जो मतलब उसी सारा सिक्योरिटी आ जाए क्योंकि जैसा अभी देखिए सबसे पहली बात से तो लगता है कि अपने मोबाइल से हमको 100 कोस दूर रहना होगा, तो भय पैदा कर दिया। पहला शुरू किया, पता नहीं, मैं तो थोड़ा लेट ज्वाइन किया, तो अब वही लगता है कि पुराने जमाने की तरह। RRU जाइएगा तो बंद कमरे में चलना रहना का पसंद कीजिए। RRU मगर आदतें इतनी खराब हो गई कि इसके बिना रहा भी नहीं जाता है। सर RRU आजकल साइबर अटैक्स बहुत बढ़ गए हैं, तो थोड़ा सा कंट्रोल में लाने का मतलब यही है कि हमें अवेयरनेस इंपॉर्टेंट है। जैसे आज हम सब लोग एक साथ आकर हमने साइबर के बारे में बात किया, क्लीनलीनेस के बारे में बात किया कि डेटा हाइजीन कैसा होना चाहिए, क्या डेटा रखना चाहिए, क्या डेटा नहीं रखना चाहिए। तो ये जो कॉन्सेप्ट है ना, ये कॉन्सेप्ट ये है कि क्राइम को ना खत्म तो नहीं किया सकता, आज ये है, कल को कुछ और है। कोविड के समय पे वैक्सीन का फ्रॉड होता था, तो ये फ्रॉड हमेशा चलते रहेंगे। कभी बजट से रिलेटेड कोई फ्रॉड आएगा, तो ये फ्रॉड ना कभी खत्म नहीं हो सकते, इसको किया भी नहीं जा सकता। ओनली थिंग इज कि हम सब लोग अगर अवेयरनेस है, थोड़ा सा नॉलेज है, जैसे विकास सर ने बोला कि फोन आया, उन्होंने एकदम से उनको रिप्लाई में दे दिया कि भाई हाँ उनको अगर जेल में डालना है तो डाल दो। सो ये जो चीज है, जहां पे अवेयरनेस होती है वहां पे आप बच जाओगे, लेकिन पैनिक नहीं करना। हमेशा कोई पैसे की रिक्वायरमेंट है किसी को, तो उसको कॉल करके पूछो। हर केस से ना अवेयर रहो, बैंकिंग के सिस्टम्स को फॉलो करो कि किसी दूसरे के लैपटॉप पे या सिस्टम पे आपको बैंकिंग से रिलेटेड पासवर्ड, फोन नंबर नहीं डालने। अपना फोन नंबर किसी को हैंड ओवर नहीं करना, किसी का बोला हुआ नंबर अपने मोबाइल पर कभी भी नहीं डालना। आजकल लोग एक नंबर डाल के आपका नंबर फॉरवर्ड कर देते हैं किसी दूसरे नंबर पे,
तो कॉल से जितने भी ओटीपी जाते हैं वो ऑटोमेटिकली किसी दूसरे नंबर पर चले जाते हैं। सो अपना मोबाइल आज एक हथियार है आप सब लोग के। डू नॉट शेयर योर मोबाइल विद एनीवन। जो जैसे रोड पे भी पूछ लेते हैं ना लोग आपसे कि सर 2 मिनट के लिए मोबाइल दे दो, एक कॉल करना है, अनअटेंडेड नहीं देना, क्योंकि अनअटेंडेड का मतलब है वो किसी का भी नंबर डाल के वो आपके साथ फ्रॉड कर सकता है। आई होप इतना। अच्छा मोहित जी, एक पार्ट तो हम लोगों ने काफी सुना, मुझे लगता है एक पार्ट अभी भी अनटच्ड है। अब सपोज कीजिए क्राइम हो गया, उसके बाद अब एज ए साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट आप लोग क्या, मतलब क्योंकि हम लोगों से एक्सपेक्ट ये किया जाता है, बीइंग एन आईसीएस पूरा देश ये सोचता है कि कुछ भी इनको आता होगा, दे आर मास्टर ऑफ ईच एंड एवरीथिंग, मतलब नो कि कुछ भी पूछ लो, अगर साइबर सिक्योरिटी तो इनको सब कुछ आना चाहिए, नेटवर्क सिक्योरिटी इन्हें आना चाहिए, एप्लीकेशन डेवलपमेंट आना चाहिए। तो कहीं क्राइम हो जाए तो सबसे पहले बुलाओ एनआईसी वाले को और हाँ बताइए इसमें क्या करना है। तो मतलब एक ऐसा कुछ लेक्चर प्लान करते हैं, सपोज समथिंग सम इंसिडेंट हैड हैपेंड, उसमें क्या बेसिक, जैसे पुलिस वाले को होता ना, चले ठीक हमने मशीन को सीज कर लिया, मोबाइल को सीज किया, उसके लॉग्स लिए एनालाइज किया, क्या देखते, तो उस पर एक कुछ लेक्चर हो जाता है कि बेसिक एटलीस्ट आइडिया हो इथिक्स के हाउ टू इन्वेस्टिगेट द थिंग्स, मतलब उस टॉपिक पर कि एग्जैक्टली एज ए सिक्योरिटी एक्सपर्ट फर्दर इन्वेस्टिगेशन में क्या स्टेप्स होते हैं और क्या क्या सॉफ्टवेयर यूज होते हैं और कैसे हम क्रिमिनल तक पहुंचने के लिए जो भी रूट्स अपनाए जाते हैं उस पर अगर थोड़ा सा होना, तो चूंकि अब अल्टीमेटली बीइंग हियर कहीं ना कहीं फ्रंट फेस में इतना बेसिक आइडिया तो होना ही चाहिए कि क्या इसके बाद करना क्या है। तो उस डायरेक्शन में भी अगर एक दिन बात हो कि एग्जैक्टली वो क्या स्टेप्स होते हैं और कैसे कैसे करते हैं आप लोग। डेफिनेटली इसको बेसिकली डिजिटल फॉरेंसिक इन्वेस्टिगेशन बोला जाता है, जिसमें आर्टिफैक्ट्स के बेसिस पर फाइंड करते हैं कि किसने क्या किया, मतलब कोई वेबसाइट हैक हुई, कोई ऐप हैक हुआ, या कोई कनेक्शन हैक हो गया, कोई डॉस अटैक हो गया, किस आईपी से हुआ, कैसे हुआ, क्यों हुआ। ये कुछ क्वेश्चंस है बेसिकली डिजिटल फॉरेंसिक की वर्ल्ड के अंदर पूछे जाते हैं और कुछ सॉफ्टवेयर यूज किए जाते हैं, जैसे यूफेड मैंने आज बताया आपको, वैसे ही नेटवर्क एनालाइजर्स काफी सारे होते हैं, डॉस अटैक्स के ऊपर सिम टूल्स होते हैं। तो उस पर हम एक सेपरेट तरीके से एक लेक्चर डिसाइड कर सकते हैं जिसका फोकस ही साइबर फॉरेंसिक इन्वेस्टिगेशन होगा, जिसमें टूल्स को कैसे यूज करना है और टूल्स कौन कौन से टूल्स नॉर्मली यूज किए जाते हैं मार्केट में, तो उस पर हम दैट वी कैन टॉक। वो यस, उसमें मतलब एक तो हमारा साइबर क्राइम्स आईटी जो हमारे इंडियन जो बेसिकली लॉ है वो क्या कहता है, ठीक ना, इन्वेस्टिगेशन और लॉ एंड ऑब्वियस बात जो सिर्फ 2-3 इस टॉपिक में, तो क्योंकि वो एक बिल्कुल अनटच्ड है, क्योंकि वो भी जानना जरूरी है। चलिए हो गया क्राइम, रोकना चाहिए। अब कई बार लोग आते हैं, भाई मेरे पास था तो क्राइम हो गया, आप बताएं मेरी हेल्प करो। देखिए जब क्राइम ना अलग अलग तरीके से, हमारा पॉपुलेशन बहुत बड़ा है, अब क्राइम हो सकता है कि किसी वेबसाइट के साथ हो जाए, किसी पर्सन के साथ हो जाए, कोई फाइनेंशियल क्राइम होता है, तो हर चीज के अलग अलग तरीके हैं कि हमको फाइनेंशियल क्राइम को कैसे डील करना है या फिर हमको किसी नेटवर्क के क्राइम को कैसे डील करना है, फॉरेंसिक इन्वेस्टिगेशन कैसे प्रोसीड करना है, फर्स्ट रिस्पॉन्डर कौन होगा, सबसे पहले जाके सीजर कौन करेगा, डिवाइस को टच करना होता है या नहीं करना होता है, डिवाइस को शट डाउन करना होता है नहीं करना होता है। ये जो चीजें होती है फॉरेंसिक की का जो एक सेपरेट डिवीजन होता है फॉरेंसिक इन्वेस्टिगेटर्स का, उनका काम होता है। और अगर क्राइम होता है तो डेफिनेटली पुलिस इन्वॉल्व होती है। आपका जैसे मैंने आज आपको वेबसाइट बताई cybercrime.gov, ये पब्लिक के लिए बेसिकली। इंटरनली अगर आप जाते हो तो फिर आपको कंप्यूटर को सीज करना होता है, नेटवर्क से डिस्कनेक्ट करना होता है कि अगर कोई हैकर आपका डेटा निकल रहा है आपके नेटवर्क से या सिस्टम से, ऐसे प्रोग्राम्स आपको अपने लैपटॉप में डाल के रखने पड़ते हैं जो अगर आपके लैपटॉप से कोई डेटा बाहर जा रहा है तो आप एकदम से अलार्म कर दे। तो ये देखना पड़ेगा कि हमारा करंट इंफ्रा कैसा है, उसके बेसिस पर हम फिर आगे अपना स्टेप लेते हैं। तो लास्ट 5 मिनट्स आई थिंक हम अपने जो हमारे इमिनेंट ऑडियंस जो कनेक्ट है अक्रॉस द डिस्ट्रिक्ट जो है, हमारे जो सीनियर साइंटिस्ट यहाँ पर भी हैं, हम चाहेंगे अगर आपके लास्ट क्वेरीज जो भी हैं तो अभी हम लोग मोहित जी के साथ पुटअप कर सकते हैं और इसके बाद हम इसको जो है सेशन को कंक्लूड करने की तरफ बढ़ेंगे। हम पटना से बोल रहे हैं पंकज। हम लोग ये जानना चाहेंगे कि जैसा विकास जी ने बताया कि हम लोग आफ्टर क्राइम हम लोग क्या कर सकते हैं, किस तरह से मदद कर सकते हैं किसी पब्लिक का, वो जाने।
और हम वो फैसिलिटीज़ भी जाना चाहते हैं, जैसे 1930 नंबर है हमारा साइबर क्राइम को रिपोर्ट करने का, तो उसके बारे में थोड़ा जानना चाहेंगे। कुछ साइबर क्राइम्स के लिए वेबसाइट्स भी हैं, हम चाहेंगे कि उसको भी हम लोग लिस्ट डाउन करें और आपस में उसको शेयर कर लें, ताकि हम लोग जनरल अवेयरनेस भी फैलाएं और कुछ लोगों की मदद भी कर पाएं। खास करके रिकवरी में बैंक्स का क्या रोल है, बैंक्स को किस तरह से इस लूप में लाया जाए। पुलिस के यहाँ तो एफआईआर हो जाती है, लेकिन बैंक्स नॉर्मली रेस्पॉन्ड नहीं करते हैं, तो उनके साथ उनके पास डिस्ट्रेस फॉर्म होता है जिसको भर के देना होता है। हमारे साथ क्राइम हुआ तो हमसे उन लोगों ने वो फॉर्म ही नहीं लिया, सीधा बोला हम अपने देखते हैं। तो इस टाइप का ना करें, ये जानकारी होने पर हम लोग आगे बढ़िया से डील कर सकते हैं इस सब क्राइम्स को। तो अलग अलग चीज़ों के लिए अलग अलग ज़रूरतें होंगी, तो इस पे हम लोग चाहेंगे कि थोड़ा और एक लेक्चर हो और हम लोग सुने उसको। थैंक यू। देखिए साइबर, अभी जो मैंने cybercrime.gov.in का बताया था, बेसिकली यही मेन वेबसाइट है जो ऑल ओवर इंडिया रन करती है। हजारों वेबसाइट आपको गूगल में जरूर मिलेंगी, लेकिन सारी वेबसाइट्स पर आपको नहीं जाना, क्योंकि वो प्राइवेट वेबसाइट्स होती हैं। वो आप रजिस्टर कराने के बाद आपसे पैसा मांगती है कि भाई आपसे 2000 रुपये लगेगा कंप्लेंट करने के लिए, फिर हम उसको पकड़ेंगे। आपको सिर्फ cybercrime.gov.in जो ऑथेंटिक वेबसाइट है, इसको ही एक्सेस करना है। इसी पर आपकी को कंप्लेंट प्रॉपर डालनी है, जिसमें आपको पूरी डिटेल्ड इंफॉर्मेशन रखनी होती है। पहले इस पे डालने से पहले आपको पूरा सब कुछ लिख लो, अपने स्क्रीनशॉट, जिन पर सस्पेक्ट है, जिसने आपको कॉल किया उसका नंबर, सारा इंफॉर्मेशन पहले अपने पास रखकर फिर इस पर अपलोड करना होता है। और इस वेबसाइट के साथ हजारों बैंक्स के जो बीच में गाइडलाइंस आई थी, उनके रिप्रेजेंटेटिव्स कनेक्टेड है। कभी भी कुछ होता है तो उनके पास नोटिफिकेशन जाता है और उनको उस पर रिस्पॉन्ड करना होता है। सो ये अभी तक का सेम पोर्टल है, थोड़े समय पे बिजी भी रहता है कई बार। तो इसको हम क्या कर सकते हैं, बार बार अगर एक बार में नहीं लगता है नंबर 1930, तो 2-3 बार आप मिलाएंगे दूसरे नंबर से तो ये मिलेगा जरूर, बिकॉज कंप्लेंट हजारों की तादाद में कंप्लेंट जाती है इस नंबर पर। सो कोशिश कीजिए कि क्राइम अगर होता है इंस्टेंटली आपको इस पर रिपोर्ट करना है। लोग पुलिस स्टेशन जाते हैं, सबसे पहले पुलिस स्टेशन जाने से पहले इस नंबर पर इंफॉर्म करना चाहिए, क्योंकि पुलिस स्टेशन जाकर जब आप कंप्लेंट दर्ज कराते हो, वो कंप्लेंट भी इसी वेबसाइट पर जाती है। ये सेंट्रलाइज्ड पोर्टल है, पुलिस वाले भी इसको इसी पर डालते हैं। लेकिन प्रॉब्लम ये हो जाता है कि पुलिस की तरफ से कई बार 1 दिन का डिले हो गया या 2 दिन का डिले हो गया डेटा अपलोड होने में, तो आपका पैसे का चांस कम हो जाता है। पुलिस वाले इसको साइबर पुलिस के इंटरफेस से जाके एंट्री करते हैं। बिल्कुल, पुलिस वाले उस इंटरफेस से जाते हैं, आप लेकिन अपने इंटरफेस से जाकर डायरेक्टली भी जा सकते हो, क्योंकि अभी अगर क्राइम हुआ है तो इंस्टेंटली आप इस पर कंप्लेंट डाल सकते हो। पुलिस स्टेशन में जाने में आपको कम से कम 15 मिनट, आधा घंटा लग जाएगा। Okay, so I think thank you Mohit for this wonderful session and really a very informative talk related to cyber cleanliness and cyber hygiene. And I'm very sure that all of us have really gained lots of knowledge and inspiration from this session, and we will try to ensure that we all will adopt all these suggested practices in our normal life, and it will help a lot for this our smooth life. So I also want to thank to all our senior officers, colleagues connected through VC sitting over in district. You have given your precious time for this session, so definitely thanks to you all. Here we have our training division head, senior director IT Rajiv Ranjan sir. He has given his full time to listen and present here, so thank you sir. We have here Sanjay sir, Hussain sir, Ashok sir, Anil sir and other senior colleagues. So today we will conclude and keeping in the mind that soon we will have a new session related to this particular topic, and we will take the Ashirvachan from Mohit Yadav ji regarding this. Okay, so स्वच्छता ही सेवा है और उसके साथ में सुरक्षा ही जीवन है। इसके साथ ओके, धन्यवाद। पीपीटी शेयर करवा देते विकास जी, पीपीटी शेयर करवा देते।
बिल्कुल सर, मैं हाँ, पीपीटी शेयर इसकी पीपीटी को मैं ले लूंगा मोहित से और मैं सभी को शेयर कर दूंगा। थैंक्स। अच्छा, सभी के लिए आपको पता है कल एक दूसरा सेशन है अपना इन्वायरमेंट पर, उसके लिए हम फर्दर डिटेल शाम को रात तक शेयर करेंगे। मैं अभी जस्ट इन्फॉर्म कर रहा हूँ, तो आई विल शेयर यू डिटेल्स। ओके, थैंक यू एवरीवन।